Assalamu alaikum dear students. We are going to take another unit, permutation and combination. So before starting permutation and combination, let us first learn two fundamental principles of counting. Fundamental principles of counting. There are two fundamental principles of counting. One is the multiplication rule, and the second one is addition rule. So what is multiplication rule of fundamental principle of counting? Multiplication rule, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. इसका स्टेटमेंट जो है, इफ अ वर्क A can be done in m ways, if a work A can be done in m ways and another work B can be done in n ways, if a work A can be done in m ways and another work B can be done in n ways, if C is a work which is done only if both A and B are done, then the number of ways of doing the work C is m cross n. देखिए बेटा, what is the multiplication rule of fundamental principle of counting? It states, if a work A can be done in m ways and another work B can be done in n ways, if C is a work which is done only if both A and B are done, then the number of ways of doing the work C is m cross n, m into n. इसको आप दूसरे तरह से भी स्टेट कर सकते हैं. यू कैन स्टेट इट, fundamental principle of counting. There are two rules of fundamental principle of counting. One is multiplication rule, one is addition rule. Multiplication rule हम पढ़ रहे हैं. So what is multiplication rule? If a work is done in m ways and another work B is done in n ways and C is a work which is done only when both A and B. So बेटा यह इसमें important है. The word and is important. C is done only when both A and B are done. Then the number of ways of doing the work C is m cross n. You can state it another way. If an event occurs in m ways, if an event occurs in m ways and another event occurs in n ways, if an event occurs in m ways and another event occurs in n ways, then the total number of ways
of occurrence of both events is m cross n. If an event occurs in m ways and another event occurs in n ways, then the total number of ways of occurrence of both the events is m cross n. So this is first fundamental principle of counting. It is called multiplication rule. So what do you get from the multiplication rule? It is the basics for the permutations. This multiplication rule. हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए what do we mean by the multiplication rule, what do we mean if a work is done in m ways, what do we mean if another work b is done in n ways. Let us take an example. For example, you have three persons A, B and C. Three persons A, B and C. You have to choose in how many ways can we choose president and deputy president. In how many ways can we choose president and deputy president from three persons? Assuming one person cannot hold two positions at the same time. देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, आपके पास तीन पर्सन्स है ए बी एंड सी और आपको प्रेसिडेंट बनाना है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाना है. सी यू हैव थ्री पर्सन्स. अब देयर आर two vacant seats for it. This is for president and this is for deputy president. DP stands for deputy president and P stands for president. This place, president's place, can be filled in three ways. This place can be filled by A, this can be filled by B, this can be filled for C. Three persons are eligible for this seat. So this place can be filled in three ways. This place can be filled in three ways, either by A or by B or by C. लेगा तो एक ही ये जगह इन तीन में से, लेकिन इसके पास जो अवेलेबिलिटी है वो तीन है. वही है if an event occurs in m ways. वही है कि if a president can be selected in three ways. वही है if a work is done in m ways. So this work is done. This seat can be occupied in three ways. So this is if a work is done in m ways. ये तो कुर्सी तो एक ही है, इस पे तो एक को ही बैठना है, लेकिन हमारे पास तीन आदमी. अब इनमें से कौन सा बैठ सकता है? सो हमारे पास तीन तरीके हैं इस सीट पे बैठने के लिए. या तो ए बैठ सकता है या तो बी बैठ सकता है. Either this place can be occupied by C. अब जिसने ये प्लेस ऑक्यूपाई कर ली, मान लीजिए वो बी है, अब ये प्लेस इसको ऑक्यूपाई करनी है, ये वाली प्लेस. अब सी तो यहां बैठ गया. दिस सी कैन नॉट टेक टू पोजिशंस एट द सेम टाइम. सो प्रेसिडेंट अलग होना चाहिए, डिप्टी प्रेसिडेंट अलग होना चाहिए. सो अब अगर यहाँ पे सी बैठ गया, अब यहाँ कौन बैठेगा? या तो ए बैठ सकता है या तो बी बैठ सकता है. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू वेज, either by A or by B, assuming that C has occupied this place. There are three chances, there are three ways to occupy this place. There are two ways to occupy this place. So total number कितना आ जाएगा? Total possibilities जो आपकी आ जाएगी is equal to 3 into 2. This is multiplication principle. कि ये जगह आप तीन तरीकों से फिल कर सकते हैं, ये जगह दो तरीकों से फिल कर सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएगा दैट इज 3 into 2 दैट इज 6.
अब बेटा आप कहेंगे ये छह तरीके कौन कौन से हैं? देखो बेटा, आप ए को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, बी को डिप्टी प्रेसिडेंट, आप ए को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, सी को डिप्टी, सो दिस प्लेस इज फॉर प्रेसिडेंट, दिस इज फॉर डिप्टी प्रेसिडेंट। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, आप बी को रख सकते हैं प्रेसिडेंट और ए को रख सकते हैं डिप्टी, अब बी को रख सकते हैं प्रेसिडेंट और सी को रख सकते हैं डिप्टी प्रेसिडेंट। एंड और दो तरीके हैं कि सी को रख सकते हैं प्रेसिडेंट, ए को रख सकते हैं डिप्टी, और सी को रख सकते हैं प्रेसिडेंट, बी को रख सकते हैं डिप्टी। सो दीज आर द 6 वेज इन विच प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट कैन बी चूज। सो दीज आर द 6 वेज। ए बी, अब एक इन तीन में से ए और बी ले सकते हैं, ए और सी ले सकते हैं, बी और ए ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ ए बी और बी ए अलग है। देखो ए बी और बी ए में फर्क क्या है? ए इज प्रेसिडेंट, बी इज डिप्टी प्रेसिडेंट, और यहाँ पर बी इज प्रेसिडेंट एंड ए इज डिप्टी प्रेसिडेंट। सो ये अलग अलग ऑप्शंस है। सो आपके पास जो 6 तरीके वो ये है, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से इस तरह निकाला कि दिस प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड इन 3 वेज, दिस प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड इन 2 वेज, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 3 into 2. So हम ये भी कह सकते हैं this work can be done in 3 ways, this work can be done in 2 ways, total number of ways of doing the work is 3 into 2. This event occurs in 3 ways, this event occurs in 2 ways, total number of ways of occurrence is 3 into 2, that is 6. So this is multiplication rule. So multiplication rule हमें क्या बताता है कि अगर आपका जो एक इवेंट है it occurs in m ways and another event आपके पास है occurs in n ways, so total number of ways of occurrence इन दोनों के होने के कितने चांसेस है? That is m cross n. ये समझ में आ गया? So this is multiplication rule. और इसी पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल पे, एडिशन रूल पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज एडिशन रूल। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द एडिशन रूल। अब दिस इज आल्सो फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। अब एडिशन रूल क्या बताता है? अब जो मल्टीप्लिकेशन रूल था उसमें क्या था कि इफ अ वर्क इज डन इन m ways, another work is done in n ways, so total number of ways of doing the works both a and b is m cross n. अब यहाँ पे क्या है एडिशन रूल? if a work a is done in m ways and another work B is done in n ways, if C is a work which is done only if A or B is done, then total number of ways of doing the work C is m plus n. देखिए बेटा अब क्या है? if a work A is done in m ways, आपके पास एक वर्क है, it is done in m ways, another work B is done in n ways, सेम उसी तरह जिस तरह फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में। लेकिन यहाँ पे और उसमें क्या फर्क था? वहां पे था if C is a work which is done only if A and B is done, और यहाँ पर है if A or B is done. Addition rule. Then the total number of ways of doing the work C is m plus n. C एक एग्जांपल के थ्रू ये करते हैं। एग्जांपल, let there are 3 students in section A and 4 students in section B. That there are 3 students in section A and 4 students in section B chosen for selection of CR.
क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अब एक क्लास है, मान लीजिए 11th क्लास ही है। अब 11th क्लास में 2 सेक्शंस है, एक सेक्शन में है 3 स्टूडेंट और दूसरे सेक्शन में 4 स्टूडेंट्स। नहीं, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सेक्शन में से उठाए गए हैं 3 स्टूडेंट्स और दूसरे सेक्शन में से उठाए गए हैं 4 स्टूडेंट। अब इनमें से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? देखो, अब क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो आप चूज कर सकते हैं। ये तो आपके पास ए सेक्शन के 3 लड़के, इन 3 में से कोई भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आप इन 4 में से कोई उठा सकते हो। सो पॉसिबिलिटी ये तो है, या तो इन 3 में से उठा सकते हो या इन 4 में से कोई उठा सकते हो। सो यहां पे या आ गया, और आ गया। अब जहां पे ये और आ जाएगा, सो वहां पे हम रूल यूज करते हैं, एडिशन रूल। देखो, आपके पास और जब सॉल्यूशन होंगे तो आप क्या लिखोगे कि हमारे पास जो सीआर चूज करने के तरीके हैं, सेक्शन ए में से 3 है। मान लीजिए ये ए बी सी 3 लड़के हैं आपके पास, आपको किसी को भी आप सीआर बना सकते हैं। सो आपके पास जो सेक्शन ए में है 3 लड़के हैं, उनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। सेक्शन बी में भी 4 स्टूडेंट, उनमें भी किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 + 4। असल में आपको देखना क्या है कि जहां पे डिपेंडेंट्स होंगे ये इवेंट्स, वहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल आते हैं, और जहां पे इंडिपेंडेंट होंगे इवेंट्स वहां पे एडिशन रूल होता है। सो एडिशन रूल में आप क्या करते हैं कि इफ अ वर्क इज डन इन m ways एंड अनदर वर्क b इज डन इन n ways, c इज अ वर्क। अब c यहां पे क्या है, व्हाट इज c? c इज अ वर्क टू चूज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। You can choose class representative from section A in 3 ways. You can choose class representative from section B in 4 ways. अब C क्या है? C is a work. C is the work to choose a class representative. लेकिन आप class representative किस तरह choose कर सकते हैं? या तो A में से choose कर लोगे या तो B में से choose कर लेंगे। वही हमने लिखा, if C is a work which is done only if A or B is done. जब A या B, चाहे आप इनमें से उठाओ 3 में से या इनमें से उठाओ, तो आपका काम हो जाएगा। इन 4 में से किसी को बनाओ या इन 3 में से किसी को बनाओ। अब C क्या है? A और B, या तो ये काम कर लो या तो ये काम। आपको दोनों काम करने जरूरी नहीं, इसमें भी और इसमें भी उठाना है। तो इनमें से आपको क्या करना है, या तो A करना है या तो B करना है। सो यहाँ पे जो रूल यूज होता है वो होता है एडिशन रूल। सो यहाँ पे जो सोल्यूशन आएगा 3 + 4 दैट इज 7। सो अब आपके पास 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। अब इस पे तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एडिशन रूल पे, मल्टीप्लिकेशन रूल पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो अब ये मल्टीप्लिकेशन रूल हमें क्या बताता है? मल्टीप्लिकेशन रूल हमें बताता है कि इफ, शाबाश, अब इफ an event occurs in m ways, another event occurs in n ways, and the 2 events are dependent, then the total number of ways of occurrence of both the events is m × n. और एडिशन रूल क्या बताता है? इफ अ वर्क इज डन इन m ways, another work is done in n ways, and C is a work which is done only if A or B is done, then the total number of ways of doing the work is m + n. अब इस पे थोड़े एग्जांपल्स करते हैं। देखो बेटा, पहले एग्जांपल लिख लो। पहले एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 2 3 4 5। देखिए बेटा, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, और डिजिट जो आपको यूज करने हैं 1 2 3 4 5। सो आपके पास है 5 डिजिट, 6 7 8 9 8 0 आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ 1 2 3 4 5। तो सॉल्यूशन देखो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत डिटेल्ड में लिखूंगा, बाकी क्वेश्चन डिटेल्ड नहीं लिखेंगे। आपके पास है 3 डिजिट नंबर, सो ये है 3 डिजिट नंबर।
This is first place, this is second place, and this is third place. देखो बेटा करना क्या है. How many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if a repetition is not allowed? If there is no repetition. अब there is no repetition का मतलब अगर आपने यहाँ 1 यूज किया, यहाँ फिर से आप 1 यूज नहीं कर सकते. So यहाँ पे अगर 2 यूज किया, आप फिर यहाँ या यहाँ 2 यूज नहीं कर सकते. So this is repetition is not allowed. अब बेटा देख लिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. So आपको क्या देखना है, आपके पास है 3 प्लेसेस. मान लीजिए ये एक वर्क है, ये एक काम है, ये ए काम करना है, ये बी काम करना है, ये सी काम करना है आपको. अब ये जो ए वर्क है, ये कितने तरीकों में हम कर सकते हैं. अब काम क्या है, यहाँ पे आपको बिठाना है किसी नंबर को. अब किस नंबर को आप बिठाएंगे, आपकी मर्जी. आपके पास तो 5 नंबर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी. So you can take any of the 5 numbers and replace this place by any of these 5 numbers. तो आप क्या कर सकते हैं, so आप लिखेंगे जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस can be occupied in 5 ways. अब ये जो फर्स्ट प्लेस है, इसको आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं 5 तरीकों से. अगर मैं यहां लिखूं 5 लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पे 5 लिख रहा हूं. मेरे 5 यहां लिखने का मतलब है कि ये जो ये प्लेस है, दिस फर्स्ट प्लेस, इट कैन बी ऑक्यूपाइड इन 5 वेज. आप यहां 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी. कोई भी 5 नंबर, इन 5 नंबर में से कोई भी यहां यूज कर सकते हैं. करना तो एक ही है यूज, लेकिन तरीके हैं हमारे पास 5. यहां तो एक ही नंबर बैठेगा, लेकिन 5 तरीकों से ये जगह हम फिल कर सकते हैं. किन किन तरीकों से, या तो यहाँ 1 लिख सकते हो, या 2 या 3 या 4 या 5, लेकिन बैठेगा तो यहाँ पे एक ही, लेकिन तरीके हैं हमारे पास. सो हमें ये नहीं देखना है कि प्लेस पे कितने बैठ सकते हैं, हमें देखना है कि कितने तरीकों से इस प्लेस को हम फिल कर सकते हैं. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज. अब जब आप इसको 5 वे से फिल कर लेंगे तो ये काम आपने खत्म किया. 5 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन अब खत्म किया मतलब इस पे आपने एक आदमी को बिठा दिया, इस पे आपने एक नंबर को बिठा दिया. वो नंबर क्या हो सकता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5. मान लीजिए 5 है, या मान लीजिए 4 को यहाँ पे आपने बिठा दिया. बैठेगा तो एक ही, लेकिन तरीके हैं 5. अब जब इस पे एक नंबर बैठ गया, वो नंबर आप यहां नहीं लिख सकते. अब आपके पास जो अवेलेबल नंबर्स होंगे वो 4 होंगे. समझ में आ रहा है. अब जो अवेलेबल नंबर होंगे वो 4 होंगे, क्योंकि एक नंबर तो यहां बैठ गया है. तरीके हैं 5, लेकिन बैठेगा एक ही. अब यहां एक नंबर बैठ गया. अब जो बाकी बच गए ये 2 जगह, इस जगह के लिए अब आपके पास है 4 नंबर. सो सेकंड प्लेस जो है, सेकंड प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड इन 4 वेज. अब 4 ही तरीके हैं. क्यों है 4 तरीके, क्योंकि एक नंबर तो यहां बैठ गया. अब हमारे पास तो 4 ही नंबर है. सो इस जगह हम उन 4 नंबर्स में से कोई भी एक ले सकते हैं. अब जो थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. अब जो थर्ड प्लेस है, ये अब 3 तरीकों से फिल कर सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स is equal to 5 into 4 into 3, क्योंकि ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि यह जगह फिल करना है, तो लेकिन आप डिपेंड हो इस पे कि अगर ये फिल हो गई है तब 4 ही रहे, अगर ये और ये फिल हो गई तो 3 ही रह गए. सो ये एक दूसरे पे डिपेंड है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा. सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आपको कितने बनेंगे, 60. लेकिन बेटा ये क्या है, व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. अब अगर यही क्वेश्चन होता, कि आपको 3 जगह फिल करनी है, नंबर से आपके पास 5, इफ रिपीटेशन इज अलाउड. अब अगर रिपीटेशन अलाउड होगी, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, जो ये फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने तरीकों से. देखो आपके पास 5 नंबर से 5 में से कोई भी लिख सकते हो. सो 5 वेज. अब जो सेकंड प्लेस है,
वो भी आप 5 तरीकों से फिल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने यहाँ यूज किया वो यहाँ भी यूज कर सकते हो। सो आपके पास जो अवेलेबल नंबर है वो तो फिर से 5 रह गए। अब जो यहाँ यूज किया, यहाँ यूज किया, यहाँ भी यूज कर सकते हो, सो फिर से आपके पास 5 ही रह गए। सो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. So total number of 3-digit numbers. Total number of 3-digit numbers when repetition is allowed. अगर repetition allowed होगी is equal 5 into 5 into 5, that is 125. तो बहुत ही आसान है कि अगर रिपीटेशन अलाउड होगी तो जितने आप यहाँ यूज कर सकते हो वो इतने यहाँ भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी यूज कर सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो आपने यहाँ यूज किया एक नंबर वो यहाँ पे अब यूज नहीं कर सकते। तो अब बच गए 4। अब ये जगह 4 तरीकों से फिल कर सकते। अब यहाँ भी बिठा दिया, यहाँ भी बिठा दिया, 2 अलग अलग नंबर्स। अब इस जगह के लिए आपके पास है 3 नंबर्स, उन 3 में से कोई भी उठा लो, यहाँ लिख लो। समझ में आ रहा है? सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5, दिस 4, दिस 3, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब अगर रिपीटेशन अलाउड है, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. सो टोटल नंबर ऑफ ways इज 5 into 5 into 5, that is 125. अब बेटा और एक क्वेश्चन लिखेंगे। देखो बेटा और एक क्वेश्चन लिखेंगे। हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4। चलो अब ये क्वेश्चन है 0, 1, 2, 3, 4। अब भी इस वक्त भी आपके पास 5 डिजिट्स है। सो यहां पर हम 2 केसेस बनाएंगे, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, और दूसरा केस व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है बेटा, अगर इस तरह से समझ नहीं आ गया मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाऊंगा। 1, 2, 3 आपको 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। अब 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे इसमें? देखो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, 1, 2 बनेगा, 1, 3 बनेगा, 2, 1 बनेगा, 2, 3 बनेगा, 3, 1 बनेगा और 3, 2 बनेगा। सो ये है वो 6 नंबर्स जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इतने नंबर्स है। समझ में आ रहा है? So 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2. So अगर आपके पास यही क्वेश्चन होता आपको 2 डिजिट वाले नंबर बनाने, so this place can be filled in 3 ways. अब एक तो यहाँ बैठ गया, अब यहाँ इस प्लेस के लिए अब आपके पास कौन सा बैठेगा? अब एक तो यहाँ बैठा है, अब 3 में से 2 ही होंगे, यहाँ 2 अवेलेबल है, तो this place can be filled in 2 ways, this place can be filled in 3 ways. So total number of ways is 3 into 2, that is 6. समझ में आ रहा है? So 3 into 2, that is 6. अब अगर रिपीटेशन अलाउड होगी, रिपीटेशन अलाउड में हम क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ आपके पास 3 नंबर्स मौजूद है, 3 में से कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी वही 3 यूज कर सकते हो। सो इट इज 3 into 3, that is 9. अब अगर आप कहेंगे वो 9 नंबर बना के दीजिए, देखो 1, 1 भी आ सकता है, 1, 2 आ सकता है, 1, 3 आ सकता है, 2, 1 आ सकता है, 2, 2 आ सकता है, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। रिपीटेशन अलाउड, ये 3 नंबर तो इससे ज्यादा हो गए क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो 9 आ जाएगी बेटा। इसी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके पास है 3 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4। इससे पहले भी हमारे पास 5 डिजिट्स अवेलेबल थे, 3 डिजिट नंबर बनाना था, इस वक्त भी वही क्वेश्चन है, लेकिन फर्क क्या है बेटा? देखो हम ए वाला पहला पार्ट जो है रिपीटेशन नॉट अलाउड, आपके पास है 3 प्लेसेस, क्योंकि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो आपके पास 5, तो यहां 5 में से कोई भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बेटा? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये 0 अगर हमने यहां पे लिखा, फिर यहां 2 और यहां 3 लिखा,
तो 0 2 3 23 बन गया, वो 3 डिजिट नंबर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 0 यहां पे आप नहीं लिख सकते। और बेटा याद रखना, दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, लेकिन फर्स्ट प्लेस किसको कहेंगे? याद रखना बेटा, फर्स्ट प्लेस वो प्लेस रख लो जिसपे रेस्ट्रिक्शन होती है। यहां रेस्ट्रिक्शन इस प्लेस पे है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि यहां पे आप 0 यूज नहीं कर सकते। जब यहां पे आप 0 यूज नहीं कर सकते तो बताओ इस प्लेस पे अब कितने यूज कर सकते हो? 1 भी लिख सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। समझ में आ गया? तो मैं यहां लिखूंगा 0 कैन नॉट बी रिटन। आपके लिए लिख रहा हूं अभी, बाद में खुद समझ लेना। यहां हम 0 नहीं लिख सकते, 0 के बगैर जो 4 है लिख सकते हैं। सो सबसे पहले आप कौन सी प्लेस फिल कर लोगे जहां पे खतरा होगा, जहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे? याद रखना बेटा, सबसे पहले वो प्लेस फिल कर लोगे जहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होगी। सो ये है 4 वेज। समझ में आ गया बेटा? क्योंकि यहां 0 नहीं लिख सकते। अब आपने यहां उन 4 में से एक नंबर लिख लिया। अब बचे कितने? आपके पास थे 5, ये तो यूज ही नहीं किया। इन 4 में से एक यूज किया, मान लीजिए 2 यूज किया। अब कितने बच गए आपके पास? 0 1 3 एंड 4। यहां 0 यूज कर सकते हैं, 1 भी, 3 भी, 4 भी। यहां 0 को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो प्लेस है, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। क्योंकि ये जगह तो आपने फिल की है, यहां एक नंबर बैठा है। अब 5 में से जब यहां एक बैठा तो 4 बच गए। ये जगह जो है ये आप 4 तरीकों से अब फिल कर सकते हैं। अब ये जो है, ये यहां भी एक बिठा दिया, यहां भी एक बिठा दिया। 5 में से आपने यहां एक बिठा दिया, यहां एक बिठा दिया, तो अब कितने बच गए? 3। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वे। सो टोटल कितना आ जाएगा यहां पे आंसर बेटा आपका? यहां पर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स 4 into 4 into 3। 4 4s are 16, 3s are 48। सो 48 वेज ऐसी है जिसमें आप ये 3 डिजिट नंबर बना सकते हो। समझ में आ गया बेटा? बहुत ही आसान है। यहां 0 यूज नहीं कर सकते, बाकी 4 में से कोई भी। अब एक को यहां बिठा दिया, फिर बच गए 4 नंबर्स। उन 4 में से यहां कोई भी, यहां भी एक, यहां भी एक, अब बच गए 3। उन 3 में से यहां कोई भी यूज कर सकते हैं। अब जो इसका बी पार्ट है, रिपीटेशन इज, तो यहां लिखो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और यहां लिखो रिपीटेशन इज अलाउड। इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, अब इसमें रिपीटेशन अलाउड है। सो 3 जगह है आपके पास, 3 प्लेसेस है, फिल करनी है, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है। अब जब रिपीटेशन अलाउड है तो ये जगह आप फिल कर सकते हो इन 4 वेज। अब है दूसरा पार्ट इसका कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अब रिपीटेशन जो आपने यहां यूज किया, यहां भी यूज कर सकते हो, यहां भी यूज कर सकते हो, अब कोई मसला नहीं है। लेकिन बेटा यहां पे फिर से ही रेस्ट्रिक्शन है, 0 तो यहां लिख ही नहीं सकते क्योंकि आपको 3 डिजिट नंबर बनाने। तो ये जगह जो फिल कर सकते हैं 4 तरीकों से। अब यहां पे तो एक नंबर लिखा, वो तो आप यहां भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो कितने बच गए, बचे तो कुछ नहीं, आपके पास तो 5 है ना, वो 5 आप यहां यूज कर सकते हो 5 वे। और दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। यहां 5 में से कोई भी, यहां पर भी 5 में से कोई भी, लेकिन यहां आप 0 नहीं लिख सकते। सो यहां पर 4 वे। सो टोटल कितना आ जाएगा यहां पे जब रिपीटेशन अलाउड होगा? 4 into 5 into 5, so it is 100। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक एग्जांपल लिखते हैं बेटा। देखो, और एक क्वेश्चन, how many 3-digit even numbers can be formed by using digits 1 2 3 4 5 6? A option, if repetition
not allowed, or B option if repetition allowed. देखो बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन जो है फिर से 3 डिजिट नंबर्स बनाने, लेकिन इस वक्त है इवन नंबर्स। आपको याद होना चाहिए बेटा सॉल्यूशन पहले पार्ट का 3 डिजिट वाले नंबर बनाने, सो आपको 3 काम करने हैं, ये जगह फिल करनी है, ये जगह फिल करनी है, ये जगह फिल करनी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया पहले वो जगह फिल किया करो जिसपे रेस्ट्रिक्शन होगी। अब बेटा इवन नंबर बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन तो इस प्लेस पे होती है, एट यूनिट्स प्लेस। रेस्ट्रिक्शन क्या होती है कि एक नंबर तब जाके इवन होता है जब इसके यूनिट्स प्लेस पे होगा इवन नंबर, यानी कि 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8। अगर इस जगह पे उनमें से कोई नंबर होगा तो ये नंबर जो है 3 डिजिट वाला इवन बनेगा। अगर यहाँ 1 आ गया तो ये ऑड बनेगा, अगर यहाँ 3 आ गया तो ये ऑड बनेगा। लेकिन आपको बनाना है इवन, सो इवन बनाने के लिए यहाँ पे आपको यूज करना है 0, 2, 4, 6 और 8। लेकिन आपको जो अवेलेबल है 0 तो नहीं है, 8 भी नहीं है। अब अवेलेबल क्या क्या है आपके पास 2, 4, 6। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वे। सबसे पहले आप इसको फिल कर देंगे, अब फिर इसको कर लो, इसको कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन सबसे पहले किसको फिल करना है जिसपे रेस्ट्रिक्शन होगी। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। कौन कौन सा नंबर यहां आप लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, क्योंकि इवन बनाना है। अब आपने इसको इवन बनाया, मान लीजिए 2 लिखा। जब इस प्लेस पे आपने 2 लिखा तो अब कितने बच गए, बाकी 5। उन 5 में से यहां कोई भी यूज कर सकते हो। अब यहां भी 1 लिखा, यहां भी 1 लिखा, अब यहां पर कितने बच गए, 4। समझना है बेटा, सबसे पहले आपको इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाने के लिए यहां पे आना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8। अब यहां तो 0 नहीं है, 8 नहीं है, सिर्फ है आपके पास 2, 4 और 6। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। पहले यही जगह आप फिल कर लोगे। अब जब आपने ये फिल की 3 वेज में, लेकिन लिखोगे तो एक नंबर, मान लीजिए आपने 8 लिखा, ये 6 लिखा। अब जब इसमें 6 लिखा तो आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो अभी है। यहां कोई भी लिख लो उन 5 में से। तो यहां भी 1 लिखा, यहां भी 1 लिखा, 2 तो यूज किए, फिर यहां 4 में से कोई भी लिख सकते हो। सो यहां जो टोटल आएगा व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो आंसर आ जाएगा बेटा 3 ये वाला इंटू 5 ये वाला इंटू 4 ये वाला। 3 5s आर 15, 4s आर 60। सो ये इसका आंसर आएगा। अब जो इसका दूसरा पार्ट है बेटा बी पार्ट। अब रिपीटेशन अलाउड है लेकिन इवन नंबर बनाना है। वही प्रॉब्लम फिर से, इवन नंबर बनाने के लिए यहां पे सिर्फ आप यूज कर सकते हैं 2, 4 और 6, सो 3 वे। लेकिन अब रिपीटेशन अलाउड है, जो आपने यहां यूज किया यहां भी यूज कर सकते हो। सो अब बचे कितने, आपके पास तो 6 थे, यहां 1 यूज किया, लेकिन फिर से यहां यूज कर सकते हो। सो अगर इसको यहां यूज कर सकते हैं फिर से, तो आपके पास है 6 नंबर्स मौजूद अभी भी। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वे, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वे। सो टोटल जो यहां पे आ जाएगा बेटा, टोटल वो आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 6। रिपीटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी, लेकिन यहां प्रॉब्लम है क्योंकि आपको इवन नंबर बनाना है। सो आंसर कितना आ जाएगा, 6 6 is 36, 108। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक एग्जांपल करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। How many 3-digit even numbers can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if a repetition
is not allowed. देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगे। अब देखो बेटा, आपको इवन नंबर बनाना है, लेकिन यहां से 3 डिजिट नंबर बनाना है। सो 3 डिजिट में आपको 3 जगह फिल करनी है। अब यहां पे भी रेस्ट्रिक्शन है, दिस प्लेस इज रेस्ट्रिक्टेड एंड दिस प्लेस इज रेस्ट्रिक्टेड। आपको समझ में आया होगा रेस्ट्रिक्शन कैसी है। ये तो इवन नंबर बनाना है। जब इवन नंबर बनाना है तो कहने का मतलब ये है, जब इवन नंबर बनाना है कहने का मतलब ये है कि यहां पे आप यूज कर सकते हैं 2, 4 और 0 इस प्लेस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इवन बनाना है। अब और एक रेस्ट्रिक्शन यहां पर भी है, आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, ये 0 यहां पे यूज नहीं कर सकते। सो आपके पास 2 रेस्ट्रिक्शंस है। अब किस तरह कर लेंगे जब 2 रेस्ट्रिक्शंस होंगी? बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, नोट कर लेना। देखो बेटा क्या कर लोगे, अगर हमने यहां पे 0 लिखा, 0, अब रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, 0 आपने यहां पे लिखा 0, ये 0 वेज नहीं है, 0 एक नंबर है। सो 0 मैंने यहां लिखा तो इट इज इन 1 वे। सिर्फ अगर आपने यहां पे 0 लिखा, याद रखना बेटा, ठीक, यहां पे अगर आपने 0 लिखा तो अब तो यहां प्रॉब्लम नहीं है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन एनी वे, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन एनी वे, क्योंकि यहां जो ये रेस्ट्रिक्शन थी वो 0 की वजह से थी। लेकिन 0 तो यहां पे आपने यूज किया है, ये वाली जगह अब रेस्ट्रिक्शन जोन से हट गई। अब यहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहां अब 0 का कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो तो आपने यहां पे लिखा है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है। समझ में आ रहा है? सो अगर आपने यहां पे 0 लिखा, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वेज, बेटा याद रखना। तो अब क्या कर लेंगे, अब यहां पे आपने 0 लिखा, अब कितने नंबर बच गए? 5। इन 5 में से यहां कोई भी यूज कर सकते हो 5 वेज। अब यहां पे तो बच गए 4, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। देखो यहां 0 लिखा, अब बच गए 5 नंबर। इन 5 में से यहां कोई भी यूज कर लिया तो बच गए 4 नंबर। उन 4 में से यहां पर कोई भी यूज कर सकते हो। सो यहां पे कितना आ जाएगा आंसर? नंबर ऑफ वेज व्हेन 0 is at unity's place is equal to, कितने आ जाएंगे? 4 into 5 into 1 या 1 into 5 into 4, सो वो बन जाएगा 20। अब अगर 0 unity's place पे नहीं है, if 0 not at unity's place, 0 अब unity's place पे नहीं है, अब अगर 0 यूनिट प्लेस पे नहीं है, यहां पे अब 0 नॉट एट यूनिट प्लेस। अब अगर आपने 0 यूनिट प्लेस पे नहीं लिखा, क्योंकि आपने तो वो वेज कैलकुलेट की जब 0 आएगा यूनिट प्लेस। अब अगर ये यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा तो यहां पे सिर्फ आप 2 नंबर्स लिख सकते हो। आपको याद होगा बेटा, यहां तो हम सिर्फ 3 लिख सकते थे इवन बनाने के लिए, 0, 2 और 4। लेकिन अब 0 तो यहां नहीं है, अब या तो 2 लिख सकते हैं या तो 4 है। अब ये प्लेस जो है ये तो रेस्ट्रिक्टेड है बेटा, ख्याल रख लेना, ये तो रेस्ट्रिक्टेड है। यहां पे रेस्ट्रिक्शन है कि अभी तो 0 यहां यूज नहीं हुआ है, 0 तो अभी मौजूद है। अब पहले रेस्ट्रिक्शन वाली जगह फिल कर लीजिए। रेस्ट्रिक्शन वाली तो ये है, 1 नंबर तो यहां लिखा, आपके पास है 6 नंबर्स। 6 नंबर्स में से या तो 2 यहां लिखा या तो 4 यहां लिखा। मान लीजिए 2 लिखा, अब कितने बच गए? 5। लेकिन 5 नंबर्स में से यहां 0 आप यूज नहीं कर सकते। सो कितने यूज कर सकते हैं? सो 5 ही यूज कर सकते हैं। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। समझ में आ गया? देखो अगर यहां पे 0 नहीं है, 0 यहां नहीं है, तो यहां पे या तो 2 होगा या तो 4। मान लीजिए आपने 2 लिखा, अब बच गए 5 नंबर, 0, 1, 3, 4 और 5। ये तो 5 नंबर है। उन 5 में से यहां पे आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने बताया है बेटा कि सबसे पहले वो जगह फिल करनी होती है जिसपे रेस्ट्रिक्शन होती है। अब रेस्ट्रिक्शन तो यहां है, यहां तो रेस्ट्रिक्शन है, यहां तो 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां रेस्ट्रिक्शन है। 0 यहां पे नहीं लिखते 100 प्लेस पे, ये तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। सो आप क्या कर सकते हैं, ये जगह तो आप फिल कर सकते हैं इन 4 वेज।
जीरो के बगैर। अब यहां भी एक यूज किया, यहां भी एक यूज किया, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। 6 नंबर्स है आपके पास, एक तो यहां यूज किया, एक तो यहां यूज किया, अब बच गए फिर से 4। सो जीरो नॉट एट यूनिट प्लेस। ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज कितना बन सकता है? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 2 तो 32। समझ में आ रहा है बेटा? सो टोटल कितने बन जाएंगे 3 डिजिट नंबर्स? टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स इज इक्वल, वो तो बन गए थे 20 और ये बन गए 32, सो आ जाएगा 52 इसका आंसर। फिर से देख लो बेटा, अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 रेस्ट्रिक्शंस, इसलिए अलग अलग 2 पार्टों में किया। वो रेस्ट्रिक्शन तो आती है एक तो इस प्लेस पे और इस प्लेस पे। इस प्लेस पे तो जीरो का खतरा है, अगर यहाँ जीरो लिख लिया हमने तो खतरा टल गया, ये जगह रेस्ट्रिक्शन से हट गई, यहाँ जीरो लिखा तो 1 नंबर लिखा, अब 5 बच गए, ये जगह 5 तरीकों से, ये जगह 4 तरीकों से। अब ये भी फिल कर सकते हैं, ये भी पहले ये फिर ये, या पहले ये फिर ये, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जीरो यहाँ पे लिखा है। अब अगर जीरो नहीं लिखा है यहाँ पे तो ये जगह रेस्ट्रिक्टेड है। अब जब ये जगह रेस्ट्रिक्टेड है, पहले इसी को फिल करना है। यहाँ तो आपने 2 या 4 लिखा, 1 नंबर यूज किया, ये तरीके हैं आपके पास 2 या 4 लिखने के। अब जीरो तो बच गया है, वो जीरो यहाँ नहीं लिख सकते, सो 4 ही नंबर यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी 4, यहाँ 1, 2 यूज किए, फिर बच गए 4। ठीक है बेटा? सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लिए। और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो बेटा, हाउ मेनी rational numbers less than 1 how many rational numbers x can be formed? How many rational numbers x can be formed where 0 less than x less than 1 and x is equal to p by q, p comma q belongs to 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा, लेस देन 1 है, यहाँ लेस देन 1 आपको समझ में आया होगा कब बनता है एक रेशनल नंबर लेस देन 1, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं रैशनल नंबर्स लेस देन 1 वाले? लेस देन 1 प्रॉपर रैशनल नंबर्स, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स। अब इम्प्रॉपर में क्या होता है, वहां न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, लेकिन ये तो प्रॉपर है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। देखो बेटा हम क्या कर सकते हैं, अगर आप सॉल्यूशन देखोगे बेटा, देखो सॉल्यूशन करना क्या है, ये है आपके पास 1, इसको अगर हम न्यूमरेटर में रख लेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा बन जाएगा। तो आपको वो रैशनल नंबर्स चाहिए जिनका वैल्यू 1 से छोटा हो, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, इनको आप फ्रैक्शंस भी कहते हैं। सो आपको फ्रैक्शंस बनानी है, प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, आपको बनानी है, लेकिन करना क्या है, आपको इन ही 6 नंबर्स में से यूज करना है। मैं कह रहा हूं बेटा कि अगर आप यहां p की जगह 1 रखेंगे, और क्यों रख लेंगे 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है? सो 1/2 भी 1 से छोटा है, 1/3 1/4 1/5 1/6, all the 5 such rational numbers are less than 1। अब 1/1 नहीं लिख सकते क्योंकि वो इक्वल टू 1 बनेगा। सो जब आप p को वैल्यू देंगे 1, if p is 1,
Q can take any of the five any of the remaining five values. ठीक है. So ऐसे कितने रैशनल नंबर्स बनेंगे? नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, ऐसे कितने रैशनल नंबर बनेंगे विद p एज न्यूमरेटर, विद p इज इक्वल टू 1 एज न्यूमरेटर. अगर p 1 होगा, न्यूमरेटर 1 होगा, तो ऐसे कितने रैशनल नंबर्स बनेंगे? तो 5 बनेंगे. कौन कौन सा? 1/2 बनेगा, 1/3 बनेगा, 1/4 बनेगा, 1/5 बनेगा, 1/6 बनेगा. अब नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स with p is equal to 2 as numerator. अब अगर p 2 के बराबर होगा, अब अगर p 2 के बराबर होगा तो कितने ऐसे रैशनल नंबर बनेंगे जो 1 से छोटे होंगे? सो 1 से छोटे होने के लिए डिनोमिनेटर 2 से बड़ा होना चाहिए. अब डिनोमिनेटर में आप 1 नहीं लिख सकते, सो 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6. सो 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 ऐसे कितने रैशनल नंबर्स बनेंगे? तो 4 बनेंगे. सो इसी तरह बेटा नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स विद p इज इक्वल टू 3 एज न्यूमरेटर 3 आएगी. अब अगर 3 होगा न्यूमरेटर में तो ये डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो 1 से बड़ा बनेगा. ये भी नहीं लिख सकते. 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं. इसी तरह बेटा नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स जिनमें p इज इक्वल टू 4 न्यूमरेटर होगा, अगर 4 न्यूमरेटर होगा ये तो डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते. ये हो रही है सिर्फ 5 और 6, तो ये 2 बनेंगे. और नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स with 5 as numerator. अब अगर 5 न्यूमरेटर होगा, 5/1 नहीं लिख सकते, 5/2 नहीं, 5/6 लिख सकते. सो ऐसा एक ही रैशनल नंबर आएगा. सो 6 के साथ तो कोई नहीं लिख सकते. सो बेटा ये तो टोटल नंबर ऑफ रैशनल जो आएंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1. यहां तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि ये तो अलग अलग से है, ये तो इंडिपेंडेंट है. यहाँ एक का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो तो अलग बना रहे हैं, 1 के साथ 2 के साथ अलग बना रहे. सो कितने आएंगे? 5 + 4 + 3 + 2 + 1. लेकिन बेटा इनमें क्या प्रॉब्लम हो रही है देखना. बट हियर इज रिपीटेशन. यहां पे रिपीटेशन क्या है रैशनल नंबर्स की, आपको यहां से समझ में आ जाएगा. देखो बेटा आपने 1/2 लिखा, एक रैशनल नंबर, ये तो आपने लिखा, लेकिन आपने 2/4 भी लिखा, आपने 3/6 भी लिखा. 1/2 तो अलग माना, 2/4 तो अलग माना, 3/6 तो अलग माना. ये सारे तो 1/2 ही है ना, लेकिन कंसिडर किया आपने इनको 3, तो इसमें से 2 माइनस कर लेंगे, एक ही लेंगे क्योंकि आपको डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स बनाने. सो 1/2, 2/4 तो अलग नहीं, वो भी तो 1/2 है, 3/6 तो अलग नहीं. सो ये 2 इसमें से माइनस कर लेंगे एक. अब देख लो बेटा 1/2, 2/4, 3/6 ये तो माइनस हो गए. अब 2/3 और 4/6 ये भी तो 2/3 है. समझ में आ रहा है? देखो 2/3 और 4/6, 2/3 और 4 अगर इसको 2 से मल्टीपल कर लेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये भी 2/3. सो ये एक इसमें से माइनस कर लेंगे. सो इसमें से 2 सबट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि ये 3 है, लेकिन लग रहे हैं ये 3 है, लेकिन ये 3 अलग अलग नहीं, एक ही है. सो ये 3 हमने कंसिडर किए हैं लेकिन लेना एक ही है. सो 2 इसमें से माइनस, ये 2 हमने ले लिए लेकिन ये 2 नहीं, इसमें से एक माइनस कर लेंगे. अब 1/3 है बेटा, एक 1/3 और 2/6, 1/3 और 2/6, 2/6 भी 1/3 के बराबर है. तो ये लग रहे हैं 2 है लेकिन है तो एक ही है. सो इसमें से भी एक माइनस कर लेंगे और कोई माइनस मत होगा. सो इसमें से हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सच रैशनल. ऐसे कितने रैशनल्स बनेंगे बेटा? तो आंसर होगा 5 + 4 + 3 + 2
plus 1 minus वो 2 minus वो 1 minus 1, so 5 9 12 14 15 13 12 11, so 11 I say rational numbers होंगे. It will be of the form of p by q, where p is less than q and p comma q belongs to 1 2 3 4 5 6, so I say 11 rational numbers होंगे जो 1 से छोटे होंगे. इस तरह आप ये क्वेश्चन कर सकते हो बेटा. ठीक. हाँ बेटा. और एक एग्जांपल करते हैं. If there are n locks and n keys, आपके पास n number of locks है, 10 locks 10 keys, 5 locks 5 keys. आपके पास 5 locks है और 5 keys है, लेकिन उनमें नंबरिंग नहीं लिखी हुई है. This key is for this lock. आपको बस locks और keys given है. अब आपको हर किसी लॉक को अपनी अपनी की लगानी है. अब हमारे क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स वी हैव टू परफॉर्म. हमें हर किसी लॉक को अपनी अपनी की देने के लिए कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स करने पड़ेंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स. देखो बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब क्या है. आपके पास अगर 5 लॉक्स है और 5 कीज है, तो आपने एक लॉक उठाया, आपके पास की 5 है. ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो पहले ही की आप उठाओगे वो इसी लॉक की होगी, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल कि ये एक नहीं होगी, छोड़ दिया इसको, अब दूसरी उठाई, ये भी नहीं होगी, अब तीसरी हो सकती है. सो पहली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है. अगर ये 4 नहीं होगी तो 5वीं तो डेफिनेटली इसी की होगी. सो वही मेरे कहने का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें कितना परफॉर्म करना पड़ेगा. सो आपके पास जो पहला लॉक है, फॉर द फर्स्ट लॉक मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू n. क्यों? आपके पास है n लॉक्स और n कीज. एक लॉक आपने उठाया, पहला, यहां से की उठाई, पहली भी हो सकती है, दूसरी भी, तीसरी भी. अगर इनमें से कोई नहीं तो लास्ट वाली जो nth होगी वो तो जरूर इसी की होगी. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स फॉर फर्स्ट लॉक कितना होगा? वो n होगा. अब जो सेकंड लॉक होगा, फॉर द सेकंड लॉक मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स इज n-1, क्योंकि एक चाबी जो है वो आपने यूज की है एक लॉक के लिए, वो आपने साइड में रखा. अब आपके पास है n-1. अब जब आपने दूसरा लॉक उठाया तो कीज तो है n-1, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ट्रायल्स आपको करनी पड़ेगी n-1. फॉर द थर्ड लॉक इसी तरह बेटा, उसके लिए होगा n-2 एंड सो ऑन. और जो लास्ट में होगा फॉर द nth लॉक, जो nth वाला लॉक होगा, उसके लिए एक ही लॉक होगा, एक ही कुंजी होगी, वो लॉक और वो की आपस में मैच कर लेंगे. सो टोटल जो आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, वो आ जाएगा n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस सो ऑन. लास्ट में 3 2 और 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n. और ये आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n. मैथमेटिकल इंडक्शन में ये फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो. If there are n locks and n keys, पहले लॉक के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको n कीज देखनी पड़ी. अब वो लॉक जब आपने यूज किया, ये की भी यूज की, तो अब n-1 की रह गई, दूसरे के लिए n-1, फिर n-2 एंड लास्ट के लिए 1 रहेगी. और एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा. How many 5-digit telephone numbers, how many 5-digit telephone numbers can be formed, how many 5-digit telephone numbers can be formed using all the digits?
How many 5-digit telephone numbers can be formed using all the digits where the telephone number starts with 2 3? देखो बेटा, आपको 5 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर्स बताए। सो आपके पास है 5 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर, सो 5 प्लेसेस है, और आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल है, अवेलेबल नंबर ऑफ डिजिट्स वो आपके पास 10 है। 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 10 है। लेकिन क्वेश्चन में ये रेस्ट्रिक्शन है कि ये जो टेलीफोन नंबर आपको स्टार्ट करना है 2 से स्टार्ट करना है, 3 दूसरा नंबर रखना है। अब अगर ये 2 है, ये 3 है, तो ये जगह सिर्फ आप फिल कर सकते हो इन 1 वेज। ये तो उधर से ही रेस्ट्रिक्शन है, ये जगह तो सिर्फ आप फिल कर सकते हैं 2 से, यानी कि एक ही नंबर लिख सकते हो 2, और ये जगह भी एक ही नंबर से फिल कर सकते हो 3 से। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। सिर्फ ये 2 यहां लिख सकते हो, और सिर्फ यहां पर आप 3 लिख सकते हो। 3 का मतलब 3 वेज नहीं, 3 का मतलब 1 वे है, सिर्फ एक ही नंबर लिख सकते हो 3, सिर्फ एक ही नंबर लिख सकते हो 2। स्टार्ट विद 2 3 एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं रख लेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखो बेटा, अब आपने उन 10 में से 2 भी लिखा, 3 भी लिखा, अब बच गए 8। उन 8 में से यहां कोई भी यूज कर सकते हो, यहां 7 में से कोई भी यूज कर सकते हो, यहां 6 में से कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां तो 2 लिखा, यहां 3। अब यहां 1 लिखोगे, तो जब आप यहां 1 लिखोगे तो 3 हो गए, फिर बच गए 10 में से 7। यहां उन 7 में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे 1, तो यहां भी 1 लिख सकते हो। सो अवेलेबल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास है 10, लेकिन यहां पे 1 यूज करना है, यहां पे 1 यूज करना है। अब बच गए 8, 8 में से कोई भी यहां, फिर 7 में से कोई भी यहां, फिर 6 में से कोई भी। सो टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स is equal to 1 into 1. So this place can be filled in 1 way, this place can be filled in 1 way, this place can be filled in 8 ways, 7 ways, 6 ways, 336 इसका आंसर आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कॉपी कर लो। और एक एग्जांपल करते हैं बेटा। How many 3-digit numbers can be formed by using all the digits? देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्मड। आपको 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, लेकिन यूज करने हैं सारे नंबर 0 से 9 तक, यानी कि 10 नंबर आप यूज कर सकते हो। लेकिन गिवन क्या है, सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स इज इवन। ये जो 3 डिजिट्स है, इनका जो सम है वो इवन आना चाहिए। बहुत ही आसान है बेटा। सॉल्यूशन देखो, ये है 3 डिजिट वाला नंबर। मान लीजिए ये 3 डिजिट वाला नंबर है ABC। अब आपके लिए कंडीशन क्या है कि A प्लस B प्लस C इज इवन, A प्लस B प्लस C इज इवन, ये तो कंडीशन है। अब A प्लस B प्लस C इवन कब होगा, ये पॉसिबल तब है, पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है, A, B, C ऑल आर इवन। अगर ये तीनों इवन होंगे, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, सम ऑफ 3 इवन नंबर्स इज इवन, ऐसा कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरी
ए इवन, बी एंड सी ऑड, ये दो ऑड रख लेंगे, ऑड प्लस ऑड इज इवन, इवन प्लस इवन इज इवन। तीसरी पॉसिबिलिटी ए एंड बी ऑड, ए और बी ऑड रख लेंगे, या दूसरी पॉसिबिलिटी लिख लेंगे बी इवन रख लेंगे, बी इवन, ए एंड सी ऑड। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या रख लेंगे, सी इवन, ए एंड बी ऑड। अब तीन नंबर्स का सम इवन हो गया, या तो वो तीनों इवन होने चाहिए या तीन में से दो इवन होने चाहिए। अब दो क्या रख सकते हो, बी एंड सी इवन रख सकते हो, ए एंड सी सॉरी बी एंड सी ऑड रख सकते हो, ए एंड सी ऑड रख सकते हो, ए एंड बी ऑड रख सकते हो। दो ऑड होने चाहिए, एक इवन होना चाहिए। अगर दो ऑड होंगे और एक इवन होंगे तब जाके सम ऑफ थ्री नंबर्स इज इवन। ठीक है बेटा। अब अगर दो इवन होंगे और एक ऑड होगा तो सम ऑफ थ्री नंबर्स इज ऑड। वो कंडीशन हमें नहीं लेनी है, हमें वो कंडीशन लेनी है जिसमें तीनों डिजिट्स का जो सम है वो इवन आएगा। अब सम ऑफ थ्री डिजिट्स इवन तब होगा जब तीनों के तीनों इवन होंगे या तीन में से दो ऑड होंगे। अब तीन में से जब दो ऑड होंगे, वो ऑड आप बी एंड सी ले सकते हो, ए एंड सी ले सकते हो, ए एंड बी ले सकते हो। अब इसमें वेज ढूंढ लेंगे। देखो बेटा वेज, अब पहले वाले केस में वेज कितनी आएगी। अब ये बताता है ए बी सी ऑल आर इवन, ए बी और सी इवन आने चाहिए। सो बेटा इसमें तो इसने कुछ नहीं दिया है, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। जब ऐसा क्वेश्चन होगा कि रिपीटेशन अलाउड या नॉट अलाउड नहीं लिखा होगा तो आप रिपीटेशन अलाउड लीजिए। तो बेटा देख लीजिए, रिपीटेशन अलाउड है। अब एबीसी इवन है, इवन नंबर्स आपके पास है 5 इवन डिजिट, 0 2 4 6 एंड 8, दीज आर इवन। अब उन 5 में से बेटा यहां पर आप 0 नहीं लिख सकते। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, दिस प्लेस can be filled in 4 ways. This place can be filled in 5 ways क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। This place can be filled in 5 ways. So टोटल कितना बनेगा 4 into 5 into 5. So पहले पार्ट का जो आंसर होगा, फिर से मैं बताऊंगा। अब वेज फर्स्ट पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए ए बी सी आर इवन। अब इवन मतलब ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, लेकिन इवन में यहां 0 नहीं लिख सकते। सो 2 4 6 8 लिख सकते हैं। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, दिस प्लेस इन 5, दिस प्लेस इन 5, रिपीटेशन इज अलाउड। सो यहां पे जो आएगा टोटल वो आ जाएगा 4 into 5 into 5, तो 100 आ जाएगा, 100। दूसरा जो है देखो बेटा क्या है, ए इवन है, ये वाला इवन है। अब ये वाला जब इवन है तो इवन में आप यहां सिर्फ 4 ही लिख सकते हो, 2 4 6 एंड 8। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, 0 तो नहीं लिख सकते। अब ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड नंबर भी आपके पास 5 है, 1 3 5 7 एंड 9। ये जगह आप फिल कर सकते हो 5 तरीकों से, ये जगह भी फिल कर सकते हो 5 तरीकों से। सो टोटल आएगा 4 into 5 into 5, सो ये भी आएगा बेटा 100। अब थर्ड है, ये है इवन ई ई ई, और ये है ये वाला इवन ऑड ऑड, ये ऑड है ओ डी डी ऑड, 0 नहीं लिखना बेटा। ये वाला है अब तीसरा बी इवन। अब ये इवन है, ये ऑड, ये ऑड, लेकिन ऑड तो 5 है आपके पास, 5 में से कोई भी यहां यूज कर सकते हो क्योंकि यहां 0 का मसला नहीं। यहां 1 3 5 7 9, यहां पर भी 5 में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां 0 भी यूज कर सकते हैं, उसको यहां पे प्रॉब्लम है। और यहां पर ऑड है तो ऑड में कोई भी यूज कर सकते हैं। सो 5 into 5 into 5, सो इट इज 1 to 5। और अब फोर्थ वाला जो है, लास्ट पार्ट इसका, वो क्या है बेटा, सी इवन होना चाहिए। अब ये ऑड है, ये ऑड है और ये इवन है। अब ऑड के लिए यहाँ 5 में से कोई भी, यहाँ पर भी 5 में से कोई भी, यहाँ पर भी 5 में से कोई भी, क्योंकि इवन को यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 into 5 into 5, सो 1 to 5। सो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, टोटल आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 1 to 5 प्लस 1 to 5, 450 इसका आंसर आ जाएगा बेटा।